Jai Hind student. So we are discussing the chapter microorganism and viruses, friends and food. So in the last lecture we have discussed about the characteristic of microorganism and types of microorganism. Now today we will discuss about the virus. Now the first thing is that why virus are not kept in microorganism. Why we have not studied virus under microorganism, types of microorganism. Okay, so viruses are not termed as microorganism, but they are termed as submicroorganism. The reason is because viruses they exhibit the property of both living and non-living characteristic. They show both living and non-living characteristic. They are acellular, the first thing is that, and whenever they are outside the host, whenever they are outside the body of the host, they show non-living characteristic. Okay, and when they are inside the body of the host, they take up the host machinery and start multiplication and show the living characteristic. So this is the reason why viruses are known as submicroorganism but not microorganism. Okay, I think this point is clear to you कि viruses को हम microorganism में क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि whatever we have studied, अभी तक हमने जो microorganism के types पढ़े थे उसमें हमने देखा था they all were living. ठीक है, सब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, पर वायरसेस हैं जो कि दोनों ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लिविंग ऑल्सो एंड नॉन लिविंग ऑल्सो. नाउ फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरसेस. सबसे पहले हम वायरसेस के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. ओके, so the first thing that I have already told you कि they show the characteristic of both living and non-living. Now the term virus का मतलब होता है poisonous fluid. Okay, the term virus means poisonous fluid and और venom भी बोलते हैं हम इसको हम venom भी बोलते हैं, जहर that is. And this term poisonous fluid, it was given by D.J. Ivanovsky. The scientist D.J. Ivanovsky, he called viruses as poisonous fluid. Now, this scientist D.J. Ivanovsky in 1892, he has discovered tobacco mosaic virus also. Okay, this is the, if anybody asks you ki what is the first virus discovered, what is the name of the first virus discovered, so the first virus discovered was TMV, that is tobacco mosaic virus. And this virus it infects tobacco plant. जो tobacco plant होता है तंबाकू का, उसमें इसको ये इन्फेक्ट करता है, तो उसी में ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था. ओके, now this TMV was the first virus to be discovered. Now one more scientist, एक और scientist थे जिनकी हम बात करें तो M.W. Bijernik in which year? In 1898. अगर हम बात करें, year it is not mentioned. 1898 में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो एक्सट्रैक्ट था, जो भी इन्होंने जो इन्फेक्टेड टोबैको की प्लांट्स थे उससे एक एक्सट्रैक्ट बनाया, उससे एक लिक्विड बनाया और he demonstrated that this liquid, it can infect the healthy tobacco plant also if a healthy tobacco plant come in contact with this liquid. इन्होंने ये कहा कि ये जो लिक्विड है, जो कि उन्होंने एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट बनाया, उसका मीन्स उसको मैश करके फिर उसका लिक्विड निकाला जो भी इन्फेक्टेड पोर्शन था, और उस लिक्विड में क्या थे, वो वायरस थे. ओके, वो इन्फेक्शियस एजेंट थे, और उन्होंने बोला कि अगर ये इन्फेक्शियस एजेंट, ये एक्सट्रैक्ट किसी हेल्दी प्लांट में अगर हम अप्लाई कर दें तो क्या होगा, उसको भी वो डिजीज़ हो जाएगी. ओके, इसीलिए उन्होंने इस फ्लूइड को क्या नाम दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. इन्होंने इस फ्लूइड को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइड. नाउ एक और साइंटिस्ट थे स्टेनले थे, जिन्होंने इसको
क्रिस्टलाइज किया था टीएमवी के उन्होंने क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए थे, ओके, कि टीएमवी के हम क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके, बिकॉज आउटसाइड द बॉडी यू नो इट इज़ नॉन लिविंग, इट एग्जिबिट नॉन लिविंग क्वालिटी, ओके। नाउ अब ये जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, वायरसेस जो हैं जब जब ये होस्ट सेल के बाहर होते हैं, मीन्स जब ये नॉन लिविंग होते हैं, तब हम इनको एक टर्म देते हैं, उनको हम बोलते हैं विरियन, VIRION. Whenever the viruses are outside the host cell, they are known as virion. Now, next character के बात करें तो they can easily pass through bacteria proof filter paper. That means कि बैक्टीरिया जो वायरसेस होते हैं they have such a small size, इतने छोटे साइज के होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, कि दे कैन ईजिली पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। जब इनको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से पास किया गया तो वो ईजिली पास हो गए, जिससे ये पता चला कि उनका जो साइज़ है दे आर ऑफ द साइज स्मॉलर देन बैक्टीरिया ऑल्सो, ओके। ना एक और तरह का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। दैट वायरस इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस और फीडिंग वायरस इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। ना अब दूसरी बात करते हैं और इसकी कैरेक्टर। जितने भी वायरसेस होते हैं ये इनमें प्रोटीन का कोट होता है, ये इनमें जो है प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का जो कोट होता है, जो लेयर होती है, उसको बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो लेयर होती है, ये लेयर जो है छोटे छोटे से यूनिट से बनी होती है, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। अब जो वायरसेस होते हैं मोस्टली जो है उनका जो हेड रीजन होता है या तो वो कैप्सिड का होता है या तो कैप्सिड होते हैं या तो हेड रीजन जो है न्यूक्लिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, ओके। दूसरा, ये जो वायरसेस होते हैं दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ठीक है। इन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मीनिंग क्या है कि दे इन्फेक्ट दे कॉज अ पर्टिकुलर डिजीज ओनली, ठीक है। हर वायरस हर किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा, ओके। प्लांट के वायरसेस प्लांट को ही इन्फेक्ट करेंगे, ओके, एंड ह्यूमन बींग्स के वायरसेस ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। वो होस्ट जो सेल्स होते हैं हमारे सेल में अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और उसी के अंदर ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ओके। दे आर फाउंड इनसाइड द सेल्स, सो इसीलिए उनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा गया है, ओके। देन दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ड्रेडफुल डिजीजेस, ओके, जैसे आपका एड्स है, ठीक है, पोलियो है, ये सब डिजीज़ेज़ हैं जो कि वायरसेस से होती हैं, एंड ऑल्सो इट कॉज मैनी डिजीज़ इन प्लांट्स ऑल्सो। प्लांट में भी ये बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं, ओके, लाइक टोबैको मोज़ैक डिजीज़ जो कि अभी हमने पढ़ा। सो दिस इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरसेस, ओके। अभी हमने बात की थी कि वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, तो जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ओके। अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ लाइक दिस, ओके, ये दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। नाउ यू कैन सी जो हेड रीजन है, इसमें हेड रीजन जो है कैप्सिड का बना होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है, DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। देन अ कॉलर इज़ प्रेजेंट, शीट इज़ प्रेजेंट, टेल फाइबर्स हैं, बेसल प्लेट है, स्पाइक्स हैं, ओके। ये जो स्पाइक्स होते हैं ये एंकरिंग का काम करते हैं, होस्ट सेल में ये एंकर कर जाते हैं, और उसके बाद ये जो शीथ होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करती है शीथ। पहले एंकरिंग होती है होस्ट बॉडी में, फिर ये शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है वो होस्ट के सेल्स के अंदर जो है रिलीज कर दिया जाता है, ओके। सो ये डायग्राम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज, ओके। ना अब हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ेस के बारे में जो कि वायरसेस कॉज करते हैं, लाइक टोबैको मोज़ैक वायरस जो कि टोबैको डिजीज़ कॉज करता है। देन अगर हम ये बैक्टीरियोफेज जो कि अभी हमने पढ़ा वो बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज करता है। मीज़ल वायरस मीज़ल डिजीज़ कॉज करेगा। पोलियो वायरस पोलियो डिजीज़ कॉज करता है। एड्स, ओके, एड्स डिजीज़ एड्स वायरस। देन फुट एंड माउथ डिजीज़
वायरस भी होता है जो कि फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है कैटल्स में कॉज करता है। ओके, ये कैटल्स में डिजीज़ होती है। ओके, now the important features we have already discussed, क्या क्या important features हैं। ओके, ये जो है वायरसेस दे आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नोन सेल। ठीक है, जो भी स्मॉलेस्ट नोन सेल है ये उससे भी छोटे होते हैं and their size is about 0.015 micron to 0.2 micron. Okay, so you can yourself फाइंड आउट कि ये कितने छोटे होते हैं। नाउ ये जो हैं वायरसेस होते हैं दे एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप, बहुत सारी शेप्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ये रॉड लाइक भी होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पॉलीगोनल, ओके, एंड डिफरेंट वैरायटीज। नाउ यू कैन सी द डिफरेंट वायरसेस, ये उनकी शेप्स हैं। ओके, सो दैट यू कैन सी, ये है इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज़ आरएनए, क्योंकि जो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है वायरसेस में वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। दोनों ही तरह का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, डिपेंड करता है वायरस टू वायरस। सो इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि इन्फ्लुएंजा डिजीज़ कॉज करता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए है। देन ये है वैक्सीनेशिया वायरस। ओके, देन बैक्टीरियोफेज, अभी आपने इसका डायग्राम देखा। देन ये एचआईवी वायरस है, ओके, जो कि एड्स डिजीज़ कॉज करता है। और इसमें जो है, इसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ आरएनए, आरएनए होता है। ओके, बाकी प्रोटीन कोड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ओके, देन tobacco mosaic virus है। ओके, एंड दिस इज एडिनो वायरस। सो दीज आर द नेम्स ऑफ फ्यू वायरसेस। और जैसे ही ये वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं, दे टेक अप होस्ट मशीनरी, स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस करते हैं। Okay, so this is all about the viruses, important characteristic of virus, different types of viruses. Okay, hope you all have understood. So thank you everybody.